Good morning, all. Uh, our syllabus has been completed. Now, we are doing some topics in which students having problem. Today, we will discuss homogeneous linear differential equation. A differential equation of the form a naught x raised to power n dn y upon dx raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 dn minus 1 y dx raised to power n minus 1 plus an minus 1 x dy by dx plus an y equals to q, where a naught, a1, an are constant and q may be function of x or constant, is called a homogeneous linear differential equation or Euler-Cauchy equation of order n. It means ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की पावर्स सेम हो, वो क्या कहलाती है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. In our syllabus, we will discuss homogeneous linear differential equations of second order. It means a differential equation of the form a naught x square d2y upon dx square plus a1 x dy by dx plus a2y equals to q is called a differential equation of the form second order. That is called homogeneous linear differential equation of second order or Euler-Cauchy equation of second order. To solve this equation, we will use this method. First, we assume for a homogeneous linear differential equation, x equals to e raised to power z. It means z equals to log x. We will find dy by dx and d2y upon dx square. So dy by dx is, in terms of x and z, we can write as dy by dz and dz by dx. This is chain rule. So by assumed term, dz by dx is 1 by x dy by dz. Cross multiply, we will find x dy by dx equals to dy by dz. We can write it as x dy by dx equals to d, where d is dy by dz. Similarly, d2y upon dx square, it means we will differentiate again with respect dy by dx with respect to x. So dy by dx and dy by dx we find here 1 upon x dy by dz. Now here dy by dz और हमें differentiate करना है x के term में, तो we can write it like that. First we will differentiate 1 upon x with respect to x is minus 1 upon x square dy by dz as it is plus 1 upon x as it is. Now dy by dz differentiate with respect to x, so we can write it like dy by dx dx dz by dx, that is dy by dz square dz by dx, or again from dz by dx is 1 by x. Arrange it, we will find 1 upon x square d square minus dy. So x square d2y upon dx square is d minus 1 y. Similarly, x cube xn we can find, but in our syllabus second order differential equation, so we need x square d2y upon dx square एंड x dy by dx. जब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन f of d इक्वल्स टू y मिलेगी, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. इट कैन बी इजीली सॉल्व बाय यूजुअल मैनर. Some solved examples are here. Example number first, solve x square d2y upon dx square plus 3x dy by dx plus y equals to 1 minus x raised to power minus 2. Here we can see that x and dy by dx, x dy by dx, इनकी powers same है. It means this is called homogeneous linear differential equation. For a homogeneous linear differential equation, we assume x equals to e raised to power z log x equals to z. ये हम अभी ऊपर solve कर चुके हैं. dy is x dy by dx and d minus y is x square d2y upon dx square. When we will put these values in a given equation, we will find
d+1 का होल स्क्वायर y equals to 1 minus e raised to z raised to power -2. Now this is a linear differential equation with constant coefficient of second order. You can solve it by any method, जिससे भी आप इसको solve कर सकते हैं, solve करिए. मैंने यहाँ पे for CF m+1 square, it means m equals to -1 and -1, roots are repeated 2 times, so CF is C1 plus Z C2 e raised to power -z. यहाँ आप ध्यान रखें, इक्वेशन अब हमारी dy by dx में नहीं है, अब हमारी इक्वेशन dy by dz में है. x इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में चेंज हो चुका है, तो यहाँ हम मिस्टेक करते हैं. हम यहाँ पर c1 plus x c2 e raised to power -x लिखते हैं. x नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन में अब x नहीं है, z है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है. For particular integral 1 upon fd is d+1 whole square 1 upon 1 minus e raised to power z whole square. This can be solved by जनरल मेथड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. जनरल मेथड क्या है हमारा? 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू. इस फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन होता है ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स. तो मैंने d+1 होल स्क्वायर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, d+1 एंड d+1. तो फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. तो यहाँ सॉल्व करने पर अल्फा इज -1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर -z इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर z 1 अपॉन दिस टर्म. 1 minus e raised to z equals to t. So we solve this, we will find this equation. Again अभी हमारे पास 1 upon d+1 है, so हम इसको वापस जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा की वैल्यू -1 है. जब हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, वी विल फाइंड e raised to power -z log e raised to power -z -1. This is the pi. So complete solution of given differential equation is y equals to cf plus pi. cf and pi की वैल्यूज पुट करेंगे. इक्वेशन में z है, बट गिवन इक्वेशन हमारी y एंड x में है, तो हमें z को वापस x में चेंज करना होगा. तो z हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था log x, तो हमें z की जगह log x पुट करना होगा और e रेज टू पावर z की जगह x पुट करना होगा. सो सोल्यूशन इज y इक्वल्स टू c1 plus c2 log x upon x plus 1 upon x log 1 minus x upon x, which is the required result of given differential equation. Similarly, again our question, x square d2y upon dx square minus 3x dy by dx plus y equals to log x sin log x plus 1 upon x. The given differential equation is x square d2y upon dx square minus 3x dy by dx plus y equals to log x sin log x plus 1 upon x. This is the given differential equation. You can see here x and dy by dx का पावर सेम है, इट मीन्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वी अज्यूम x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z log x इक्वल्स टू z, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है x dy by dx इक्वल्स टू dy x स्क्वायर d2y upon dx स्क्वायर इज d -1y. Putting these value in equation 1, we will find जब हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यूज को पुट कर देंगे और क्यू की टर्म को भी हम जब जेड में चेंज कर देंगे तो हमें इक्वेशन ये मिलेगी. अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये दिस इज कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी विल फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन m square minus 4m plus 1 equals to 0. Roots are 2 plus minus under root 3. This is a search form. For a search form, CF is e raised to power 2z, C1 cos hyperbolic under root 3z plus C2 sin hyperbolic under root 3z. So CF is, अब मैंने यहीं पे चेंज कर दिया, प्लस में जाके भी चेंज कर सकते हैं. Z की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है. For a particular integral 1 upon d square minus 4d plus 1, this term, this is a q. बाय लीनियर प्रॉपर्टी सेपरेट कर दिया है. जब आपके पास e किसी फंक्शन के साथ होता है तो हम d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस
अल्फा से। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -1 है, सो यहाँ डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, d -1 से। जब रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये e⁻⁻z आगे आ जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा z sin x। सिमिलरली केवल e⁻ax है तो हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से। यहाँ a -1 है तो d को रिप्लेस कर दिया -1 से, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये पार्ट आपका 0 नहीं है तो ये एज इट इज e⁻⁻z 1/6 इसका सोल्यूशन हो गया। नाउ हियर यहाँ जब हमने d को रिप्लेस कर दिया d -1 से, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को मैंने दो मेथड से सॉल्व करना बताया है। एक तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻iota z, उससे आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं यहाँ सीधा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। यहाँ सीधा फॉर्मूला क्या है, 1/fd xv, वेयर x इज v इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हाँ, क्योंकि हम z यूज कर रहे हैं तो v इज अ फंक्शन ऑफ z होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला ये है, आप यहाँ से एक बार चेक करिएगा। तो मैं जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/fd x की जगह यहाँ z, 1/fd इज d² - 6d + 6, v इज sin z माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ 1/fd। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -d² - 6d + 6 का होल स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2d - 6 आएगा। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशंस आएंगी। यहाँ आप देखिए कि जब हमने सॉल्व किया है तब भी डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास d बचा है। d जब तक है आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, और साइन और कॉस के साथ जब अपॉन में d आता है तो केवल d है तब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, बट टर्म हमारे पास 5 - 6d है तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, 5 + 6d से मल्टीप्लाई किया, 5 + 6d से डिवाइड किया। इसी तरह से यहाँ होल स्क्वायर को सॉल्व किया। अब d² किससे चेंज हो जाएगा, -1 से। जब हमने सॉल्व किया इसको तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी z 5 + 6d 61 sin z। अब d डिनोमिनेटर में नहीं है, आपके पास न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में d का मीनिंग है आपके पास डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो दिस इज अ 5z + 6 डिफरेंशिएशन ऑफ sin z, दैट इज cos z। सिमिलरली हियर अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में d है तो हमने क्रॉस 11 - 60d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। सॉल्व करने पर आपके पास ये रिलेशन आएगा, ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर आप z की वैल्यू को पुट करेंगे जो आपका क्या कहलाएगा, pi कहलाएगा। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y = cf + pi। सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट इज दिस। थैंक यू।